Write down our new chapter, that is called Laplace transform. Okay. क्या for short notes. How much time your friend will take? You are also from electrical. आप भी इलेक्ट्रिकल they are electronics. अब तो सेपरेट हो जाएंगे ना आप लोग, इसके बाद फिर एनालॉग साथ में पढ़ेंगे. फिर पावर सिस्टम. गुड मॉर्निंग. मतलब ऐसा नशे में और सेम बैग था. राइट डाउन Laplace transform. ओ चलिए कोई नहीं. पेन चाहिए? पेन लिए है. राइट डाउन विथ द हेल्प ऑफ Laplace transform. With the help of Laplace transform. With the help of Laplace transform, it is possible. Write down first point. To perform stability and causality analysis of LTI system. To perform stability, causality analysis of LTI system. Done? Write down second point. To obtain pole zero plot and region of convergence. Done? With the help of Laplace transform. With the help of Laplace transform, it is possible to solve differential equation with or without initial condition. To solve differential equation with or without initial conditions. Done? To perform frequency analysis. Of absolutely integrable signal. Put a bracket. Signal
put a bracket, because Hmm. for these signal Laplace transform can be converted into continuous time Fourier transform. Laplace transform can be converted into continuous time Fourier transform. Done? Time Fourier transform. Done? एक सिग्नल है, let us consider a signal x of t, okay, whose Laplace transform is x of s. Whose Laplace transform is x of s, okay. Where, write down, where s is equal to complex, where s is equal to complex variable that is sigma plus j omega. X of t is a signal whose Laplace transform is x of s, and s is a complex variable that denoted by sigma plus j omega. इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? Sigma is real part and j omega is imaginary part. Okay? Any problem? X of s is equal to minus infinity to infinity x of t e to the power minus st dt. कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या था? e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt. यहाँ पे j ओमेगा की जगह पे क्या आ गया? s. ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Done? Now, so try one question. X of t is equal to e to the power minus at. X of t is equal to e to the power minus at u of t. सॉल्व कीजिए. सॉल्व कीजिए, मुझे भी पता है वही आएगा. फाइंड आउट एक्स ऑफ एस. यू ऑफ टी की ना, जीरो से इनफाइनाइट. वन अपॉन क्या था? Then मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे. मैं फाइनल लिख रहा हूं, ठीक है. सॉल्व कर लिए इसको. डन. देन एक नोट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. मैं इसे सॉल्व क्या करूं, इसे सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है. एक नोट दे रहा हूं मैं, बस उसको लिख लीजिए. एक्स ऑफ टी e to the power minus at u of t. Okay, see here, at first see here, its x of s is 1 by a. Okay, 1 by s plus a.
It is sigma. See here, it is sigma, it is j omega. Okay, tell me, it is right sided signal. Now come to one point that is called ROC. It is right sided signal. So when it is right sided signal, then sigma is greater than minus. Remember this one. Okay, any problem? When it is right sided signal, sigma is greater than minus a. Okay, any problem? So its ROC will, it is minus a, कहीं भी माइनस यहीं पे लाई करेगा, then its ROC will be looks like this, right sided. Region of convergence, okay, जहां पे ये कन्वर्ज कर जाएगा सिग्नल, ठीक है, राइट डाउन. एक नोट कर लीजिए इसको, इस चीज को नोट करके रख लीजिए, ठीक है. पहला नोट मैं आपको दिया, नोट दिस वन. Why sigma greater than equal to minus a? Why? Because it is right sided signal. Okay. U of t right sided signal है ना, तो U understand? Write down. मैं चार्ट बना दूंगा लास्ट में, जैसे यहाँ पे मैं चार्ट बनाया हूं ना, जैसे मैं हर चैप्टर में चार्ट बनवाया हूं ना, एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एस, वो चार्ट में बनवा दूंगा, ठीक है. राइट डाउन. कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म. Condition for existence of Laplace transform. Write down first one. Integration minus infinity to infinity x of t e to the power minus sigma t dt. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, राइट डाउन. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल लेस देन इंफिनिटी. ओके. सेकेंड कंडीशन, राइट डाउन. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x of t dt. This integration will also less than infinity. How we will get this? Put sigma is equal to 0. We will get this. Okay. ये क्या बोल रहा है? It means it is absolutely integrable. अगर ये लेस देन इंफिनिटी हो रहा है मतलब इट इज absolutely integrable. So write down, it is absolutely integrable. X of t is absolutely integrable. Done. Write down one point. Write down one point. Laplace transform can be converted into Laplace transform can be converted into Fourier transform by using relationship S is equal to j omega only for absolutely integrable system.
by using relationship S is equal to j omega only for absolutely integrable signal. Okay, see one example. Done. Write down one example. X of t e to the power minus at u of t and a greater than 0. What is its Laplace transform? X of is equal to 1 upon s plus a. Done. See this signal. This waveform is it's look like this. It is absolutely integrable. Done. So its Laplace transform is this. इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पुट एस इज इक्वल टू डन. Write down as example. अब हम लोग आते हैं आरओसी. समझते हैं आरओसी होता क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. डन. राइट डाउन. टॉपिक आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. अच्छे से समझिएगा, बस इसी का गेम है यहां पे. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ओके. राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. It is the range of complex variable. It is the range of complex variable S in S plane for which Laplace transform of signal is finite or convergent. For which Laplace transform of signal is finite or convergent. समझ रहे हैं? आरओसी क्या है? एक रीजन है जहां पे Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल या तो फाइनाइट वैल्यू देगा या तो कन्वर्ज कर जाएगा. ओके. राइट डाउन सेकंड पॉइंट. Within ROC, Laplace transform is finite. Within ROC, Laplace transform is finite, and outside ROC, Laplace transform will be infinite. समझ आया क्या? Within ROC मतलब ROC के अगर रेंज में रहेगा तो Laplace transform finite वैल्यू आएगा, and from outside the ROC the Laplace transform will be infinite. Okay. Write down third point. If Laplace transform of a signal exists, then magnitude of Laplace transform will be finite within ROC. Then magnitude of Laplace transform will be finite within ROC. Then write down next point. If Laplace transform of signal doesn't exist, then magnitude of
Laplace transform will be infinite and there will be not ROC. Understand? If Laplace transform of signal does not exist, then magnitude of Laplace transform will be infinite and there will be not ROC. Done? Anyone problem till here? Write down. Next, properties of ROC. Properties of ROC. First, ROC does not include any pole. पोल जीरो तो पता होगा, कंट्रोल सिस्टम. ROC does not include any pole. First point. Write down second one. For right-sided signal, ROC will be right side to the rightmost pole in S-plane. To the rightmost pole in S-plane. क्या बोले? For right-sided signal, ROC will be right side to the rightmost pole in S-plane. Done? समझ आ रहा है? Write down third point. For left-sided signal, ROC will be left side to the leftmost pole in S-plane. समझ आ रहा है मुनीम? Write down fourth point and understand this point or mark this point as important. For stability of LTI system, or absolute integrability of ROC should include J omega axis in S-plane. समझ आया? Of ROC should include J omega axis in S-plane. समझ आया मुनीम? क्या बोला कि अगर कोई सिग्मा और जे ओमेगा का एक्सिस है, ठीक है, अगर आरओसी इसका इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, मतलब आरओसी इस रेंज में आ रहा है, तो ये सिस्टम क्या होगा? स्टेबल भी होगा और एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल भी होगा. ओके, राइट डाउन फिफ्थ पॉइंट. For both sided signal, ROC is a strip. In S-plane. तो स्ट्रिप मतलब देखिए -2 से बड़ा, 2 से छोटा. ओके, then this ROC will look like this. Then this ROC will look like this. जैसे यहां -2 से बड़ा था तो -a से इंफिनिटी तक, लेकिन यहां -2 से 2 के बीच में, then this is look like a strip. Okay, this is called a strip. Then so we see some properties and so write down note. Write down first
लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, and put example in left sided signal. Tell me, is this left sided? Up to infinity, it is left sided. Write down first example, second example write down. It is also left sided. Now come to write down second one, second right sided signal, right sided signal. समझिए लेफ्ट साइडेड क्या है, राइट साइडेड क्या है. राइट साइडेड सिग्नल, इट इज राइट साइडेड सिग्नल, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो राइट साइडेड सिग्नल. राइट डाउन. बता रहे वो कंट्रोल वाला बोल रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आता है 0 0 0, पढ़ लिए, उसको पढ़ लिए. ओके. टाइम रिस्पॉन्स पढ़ लिए, तो वहां फिर कैसे पहुंच लिए? रिलेट हो जाता है. राइट एंड थर्ड वन, बोथ साइडेड सिग्नल, बोथ साइडेड सिग्नल. वहां से वो अच्छे से पढ़िएगा, वहां से 1 मार्क्स 2 मार्क्स आता ही है. वो वाले नहीं, वो वाले जो बोले मार्जिनली स्टेबल, अनस्टेबल. क्यों? बाकी सारे क्या कर रहे हैं? हाँ मतलब वो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बोल रहे ना. राइट ऑन थर्ड वन, बोथ साइडेड सिग्नल. It is called both sided signal. Done? Done? कुछ क्वेश्चन देखते हैं आरओसी पे हम लोग. ठीक है, राइट डाउन. चेक स्टेबिलिटी ऑफ LTI system and extension of impulse response h of t. Impulse response h of t. See here, first question. H of t, any signal, okay, h of t, any signal whose ROC is given sigma less than 1. सिर्फ ROC दिया हुआ है. ठीक है, h of t को सिग्नल है जिसका ROC दिया हुआ है. अब हम लोग h of t के बारे में कमेंट करते हैं. यहां पे दिस इज 1, सिग्मा लेस देन, मतलब ये. एनी प्रॉब्लम? सो अगर सिग्मा लेफ्ट साइड, आरओसी लेफ्ट साइडेड है, देन सिग्नल विल बी लेफ्ट साइडेड. फर्स्ट चीज पता चला हमें, लेफ्ट साइडेड सिग्नल. राइट डाउन. ठीक है, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हियर, सेकेंड पॉइंट, ROC include j omega axis, it means it is stable. राइट डाउन. देखिए यहाँ पे चीजें कितना आसान है, वहां पे देखना पड़ता है कंट्रोल सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बता रहा हूं मैं. j ओमेगा अगर ROC में इंक्लूड है, देन इट इज स्टेबल. इफ इट इज स्टेबल, देन इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. समझ आया क्या बोला मैं? कि जे पहला अगर सिग्मा लेस देन 1 है,
then it is a left sided signal. अगर ROC include j omega axis, then it is called stable. अगर if system is stable, then it is absolutely integrable. Okay, now come to second question. Tell me about this. स्टेबल तो होगा ही। Write down first point. It is right sided. Second one, unstable. And third one, not integrable. Write down. समझ आ रहा है? आगे बढ़े। Here, tell me this one. This ROC will look like strip. बताया था हमें? Its ROC will look like? Write down. This signal is right sided, left sided or both sided? both sided. Write down. It is both sided. Stable or unstable? Absolute. Write down. Done? You getting? रब करें? प्रॉपर्टीज में कितने पॉइंट हुए? हाउ मेनी पॉइंट्स यू रिटेन इन प्रॉपर्टीज? राइट डाउन सिक्स्थ वन. For finite duration signal, for finite duration signal, ROC is entire S plane. ROC is entire S plane excluding possibly S is equal to minus infinity or plus infinity. Excluding possibly S is equal to minus infinity or plus infinity. समझ आया? डिस्कस कर रहे हैं इसको. Is it finite duration pulse? Yes, it is finite duration pulse. है ना फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स? हाँ, 0 से 2 के बीच में 1 हो रहा है, बाकी सब जगह 0 हो रहा है. कैलकुलेट लैपलेस ट्रांसफॉर्म x ऑफ s एंड इसका ROC. कैलकुलेट कीजिए सचिन. फॉर्मूला यू हैव x ऑफ s माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी.
देखिए सबसे पहले इधर कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स देखिएगा, ठीक है। यू इफ एनी फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स प्रेजेंट देन इट्स आरओसी इज इंटायर एस प्लेन बट एक्सक्लूडिंग एस इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। इट मीन्स एक्स ऑफ एस जो आएगा उसमें हम एस इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करके देखेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करके देखेंगे। अगर कोई भी इनफाइनाइट दे देगा, इफ एनी एक्स ऑफ एस एट प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी वी विल गेट इनफाइनाइट, देन दिस इज एक्सक्लूडिंग। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझ आया? चेक करेंगे, वो कब चेक करेंगे? कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स के लिए। वैसे अधिकतर केस में एक्स ऑफ अगर फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स है इट्स आरओसी इज इंटायर एस प्लेन। सो टेल मी व्हाट इज एक्स ऑफ एस? You, what is x of s? कितना आया? नहीं, एक्स ऑफ एस कितना आया? हाँ देखिए एक्स ऑफ एस जो आया होगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस। मुनीम आपका नहीं आया? और माइनस, हाँ बता दीजिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बता रहा हूँ। सॉल्व करने की जरूरत है? यू गेटिंग दिस वन? नो, व्हाई? नीड टू सॉल्व x of s, tell me. E to the power, then our signal is from 0 to 1, value is सॉल्व। अब तो आगे कर लेंगे ना, अब लिमिट तो पुट कर लेंगे। देन व्हाट इज आवर एक्स ऑफ एस? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s बाय एस, ठीक है। सो इट्स आरओसी, पहले तो हम लोग लिख देंगे इंटायर एस प्लेन, इंटायर एस प्लेन। अब इसको हम देखते हैं x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। टेल मी द वैल्यू एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी। 0। एनी प्रॉब्लम? एंड टेल मी एट x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इट इज 0। ऐसा पढ़ते हैं, अभी देखते हैं 0 आता है कि नहीं। हमें तो नहीं लग रहा है 0 आएगा। हमें तो नहीं लग रहा है 0 आएगा। देख रहा हूं, एक्स ऑफ इंफिनिटी पहले ये देख लेते हैं। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 इंफिनिटी, ओके, डिवाइड बाय इंफिनिटी। 1 माइनस 0
बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? यहां पे देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी का इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1। जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है तो हम लोग एक रूल यूज करते हैं, यूज एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट पढ़े, लिमिट पढ़े है ना? इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अगर हमारा x ऑफ t है, ओके, और अगर t के जगह पे इंफिनिटी या फिर कुछ पुट करने से अगर वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आता है तो हम लोग यूज एल हॉस्पिटल रूल। एनीबॉडी हैव आइडिया अबाउट एल हॉस्पिटल रूल? डिफ्रेंशिएट करते, क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। तो इसको डिफ्रेंशिएट, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज 0, इट इज 0 2 e टू द पावर माइनस 2s, टू e टू द पावर माइनस 2s बाय 1। तो s कितना पुट करना है? सो 2 e टू द पावर इंफिनिटी एंड दिस इज गिव टोटल इंफिनिटी। सो आवर ROC इज इंटायर s प्लेन एक्सक्लूडिंग s इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। राइट डाउन इट्स ROC। इंटायर s प्लेन एक्सक्लूडिंग s इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। हाँ ये लिख लीजिए, समझ आया सचिन? यू लिमिट आप लोग का नहीं, मैथ नहीं हुआ क्या? लिमिट अच्छे से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आता है। हाँ, लिमिट से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। कभी भी 0/0 फॉर्म आए, ठीक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आए तो हमें एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको दोनों अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं कि u बाय v के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ऊपर वाले को ऐसे करेंगे, नीचे वाले को ऐसे करेंगे। डन? समझ आया सचिन? हटाए। So its ROC is entire S plane excluding S is equal to minus. Okay. Munim done? Write down. Properties of Laplace transform. Properties of Laplace transform. ROC is entire S plane excluding S is equal to minus infinity. Write down. If x of t is equal to delta t, then tell me its Laplace transform. It is finite duration pulse, तो इसका ROC entire S plane. Tell me its x of S Laplace transform. 1 सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिए। कैसे होगा 1? प्रूव इट, प्रूव इट। तो क्या 1 होता है? प्रूव कीजिए मेरे को। अरे प्रूव कर दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है, हंस क्यों रहे हैं? एक्स ऑफ एस है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, एक्स ऑफ टी है, e टू द पावर माइनस एस टी डी टी है ना? तो एक्स ऑफ टी की जगह डेल्टा टी पुट करेंगे, इसका प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर
डेल्टा टी इंटू इसका प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो e टू द पावर माइनस 0 पे खुल जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा एंड इट्स आरओसी इंटायर एस प्लेन। डन। वाई एक्स इट्स Laplace ट्रांसफॉर्म इज 1, अंडरस्टैंड यू? समझ आया? राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी linearity property, linearity property, write down like this: x1 of t whose Fourier whose Laplace transform is x1s, x2 of t whose Laplace transform is x2 of s, then a हम डिक्टेट कर देना, a x1t प्लस b x2t इज इक्वल टू a x1s प्लस b x2s, where a and b are constant. डन। अब देखिए इसका आरओसी हम लोग समझते हैं। राइट डाउन आरओसी इज एट लीस्ट आरओसी ऑफ x1 of t इंटरसेक्शन x2 of t, ROC of x2 of t. Write down. समझ आया? समझा रहा हूं? इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े हैं ना? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए क्या बोला, x1t कुछ Laplace ट्रांसफॉर्म इज x1s, उसका आरओसी मान लीजिए x1t, कुछ भी आरओसी होगा उसका, x1t का कुछ आरओसी होगा, x2t कुछ Laplace ट्रांसफॉर्म इज x2 of s, इसका भी कुछ आरओसी होगा, ठीक है। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टीज ax1t प्लस bx2t जिसका Laplace ट्रांसफॉर्म ax1s प्लस bx2 of s हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा Laplace ट्रांसफॉर्म आ गया। अब इसका हमें आरओसी देखना है कि इसका आरओसी क्या होता है, इस चीज का आरओसी क्या होता है। तो आरओसी देखने के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट आरओसी x1 of t इंटरसेक्शन आरओसी x2 of t। एनी प्रॉब्लम? सो सी वन एग्जाम्पल, राइट डाउन एग्जाम्पल। y of t is equal to e to the power minus 2t u of t plus e of minus 3t u of t. Any problem? Tell me its ROC. It is, Munim, tell me, it is right sided signal? Yes, sir. So sigma greater than minus 2. And it is also right sided signal, so sigma greater than minus 3. तो इसका आरओसी क्या हो जाएगा, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस 2 इंटरसेक्शन सिग्मा क्या आएगा कॉमन, एक सिग्नल है जो -2 है, -2 से बड़ा है, कहां बन -2 से बड़ा है, ठीक है, कुछ भी है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, -2 से बड़ा है। एंड एक सिग्नल जो है वो -3 से बड़ा है। तो ये दोनों के बीच में कॉमन क्या बोल सकते हैं, सिग्मा ग्रेटर देन, बस वही चीज हो जाए।
-2 से ये बड़ा है, -3 से ये बड़ा है, तो इन दोनों का आरओसी के बीच में कॉमन ये वाला पार्ट नहीं होगा जिसमें दोनों अलाइ कर रहा। समझ आया? ऐसे ड्रॉ करके रखिए, बाद में भूल जाइएगा, मैं बता रहा हूं। मैं जितना वेव फॉर्म बना रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं। ट्राई टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी, बिकॉज अभी याद है मैं समझा रहा हूं, अभी से 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब पढ़ोगे सारा कुछ गोल हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू राइट डाउन इन योर कॉपी ऑल वेव फॉर्म। डन? राइट डाउन वन क्वेश्चन। क्या हुआ? राइट डाउन वन क्वेश्चन। x of t e to the power -2 plus 3j t u of -t plus 5. Tell me its ROC. एक एग्जांपल देख लीजिए फिर सॉल्व कीजिएगा। टेल मी उषाग, इट इज राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड? लेफ्ट साइडेड, and its real part is -2, so sigma less than -2. समझ आया? u, it is left sided, so sigma is also, region of convergence is also left sided. Write down next, x of t, क्या बोलिए? नहीं, क्या ड्रॉ कर लीजिएगा, करना है कॉपी में कर लीजिएगा। x of t is equal to e to the power 5 plus 2j into t, like this, 5 plus 2j into t, u minus t minus 9. Tell me the ROC. राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा यार, क्या तुम गलती करते हो बार बार? माइनस है तो यहाँ लेफ्ट साइड, ये माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड होता है ना, तो ये वो क्यों देखेंगे जब हमें टी के अकॉर्डिंग प्लॉट करना है तो क्या होगा आरओसी उसाग? 5 क्या, सिग्मा लेस देन 5, लेस देन बाय ग्रेटर देन, write down x of t is equal to e to the power minus 2t u of t plus 5 Tell me its ROC, and it is right sided signal or left sided signal? राइट साइडेड होगा ना, एंड सिग्मा ग्रेटर देन -2. डन मुनीम? डन? हाँ बताइए। -2t वाला है, हाँ, ROC ग्रेटर देन 5, उसके राइट साइड ग्रेटर देन -2, हाँ
तो राइट साइड तो बोल रहा हूं, तो 5 वाला इधर को आएगा प्लस वाला। तो ये राइट साइडेड नहीं सिग्नल था क्या? इज इट राइट साइडेड सिग्नल और नॉट? वही चीज तो है। 5 भी तो इस साइड से बनेगा। -5 मान लीजिए, मेरा सिग्नल यहीं से चालू है ना, मान लीजिए। -5 से डन। और उसका यहाँ बनेगा। मैं सिग्नल बता रहा हूं, बट आरओसी जो बनेगा वो यहां से बनेगा। नहीं सिग्नल को तो सिग्नल तो -5 से ही बनेगा। हाँ, और माइनस इसका जो आरओसी बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक है, हो गया। अब एक अच्छा कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है? बस आप u ऑफ t जानिए, u ऑफ -t जानिए, ठीक है, बाकी आरओसी लिखना लिख जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे नहीं, राइट डाउन x of t whose Laplace transform is x of s, x of t whose Laplace transform is x of s। इसका पोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पोल। इट इज -1 प्लस -j -2 3 4। ठीक है, इसका 0 दिया हुआ है, 1, डन। क्या दिया हुआ है? पोल 0। हम लोग देखते हैं कि आरओसी कितना पॉसिबल। तो एक पॉइंट लिखे, आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी, देखिए पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिखना नहीं है, आरओसी डज नॉट, प्रॉपर्टीज देखिए आरओसी में क्या लिखा हुआ, आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी, डजंट इंक्लूड एनी पोल। कीप दिस इन माइंड, आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी। एंड एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जीरोज जो रहता है वो जीरोज डू नॉट प्ले एनी रोल ड्यूरिंग आरओसी। समझ आया? जीरोज डज नॉट प्ले एनी रोल इन आरओसी। तो इसका हम लोग देखते हैं आरओसी क्या क्या हो सकता है। शेयर सबको अच्छे से देखें, मुनीम इसका पोल कहां कहां पे? एक है -2 पे, एनी प्रॉब्लम? एक है 3 पे, एक है ठीक है। जीरोस कहां पे? जीरोस कहां पे? जीरोस नॉट प्ले एनी रोल ड्यूरिंग आरओसी। एक और पोल कहां पे? और एक और? समझ आया? पहला आरओसी क्या हो सकता है? सिग्मा
ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो सकता है। ड्रॉ कीजिएगा सबको कॉपी में, अभी नहीं कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। पहला आरओसी ये हो सकता है, पहला आरओसी, दूसरा आरओसी ये हो सकता है, दूसरा आरओसी ये हो सकता है, तीसरा आरओसी ये और ये हो सकता है क्या? ये और ये, तीसरा आरओसी ये होगा। डन। चौथा आरओसी क्या होगा? और एक और आरओसी क्या होगा? राइट। क्या हमें बोल रहे, हमें बोल रहे, क्या बोल रहे? ये -4 तक मतलब नहीं समझे। हाँ, -1 से 4 तक, और कुछ और भी तो है, -2, 3 है, इंफिनिटी तक क्यों लिए ये पूछ रहे हैं आप? इंफिनिटी तक क्यों गए ये पूछ रहे हैं। आरओसी का प्रॉपर्टीज देखिए, फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, फॉर राइट साइडेड सिग्नल, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां से लेफ्ट जाएंगे लेफ्ट साइडेड के लिए, और राइट साइडेड के लिए राइट तक जाएंगे। बस ड्रॉ इट इन योर कॉपी। समझ आया? बता रहा हूं, इसमें पूछेंगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आरओसी का स्टेबिलिटी रेंज वाला क्या है, बता दीजिएगा। ठीक है, फिर पूछेंगे क्या, मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछेगा, मैं इसका क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूं। समझ आया सचिन? जीरो को इंक्लूड, याद रखिएगा, ये सब सीधा प्रॉपर्टीज में यूज कर, सीधा क्वेश्चन में यूज करेंगे। उस टाइम ऐसा नहीं कि सर काहे जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन में यूज करके दिखाएंगे इसका। इसके कितने आरओसी होंगे? आरओसी इसके कितने होंगे मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि -2 से 4। नंबर ऑफ आरओसी 5। क्या क्या होंगे मुनीम, क्या क्या आरओसी होंगे बताइए? नहीं ऐसे बताइए, सिग्मा करके। पहला, सेकंड बताइए। सिग्मा ग्रेटर देन 3, लेस देन 4। एनी प्रॉब्लम? यू अंडरस्टैंड? थर्ड बताइए सचिन, सचिन टेल मी थर्ड वन। टेल मी।
लिख लीजिए, ये पॉसिबल आरओसी ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है, पॉसिबल आरओसी और ये बातों लिख लीजिए। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, 1 2 3 4 5, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राइट डाउन एज अ नोट, ओके, यू राइट डाउन एज अ नोट, in Laplace transform, in Laplace transform, ROC is related to real part of pole. देखे ना, ROC is related to, यहां पे देख लीजिए एग्जांपल दिखा ना, -1 + 3j या 1j था तो -1 से ले रहे थे, ठीक है। इन Laplace ट्रांसफॉर्म ROC is related to real part of the pole, okay. Write down second point, नंबर ऑफ, अब देखिए कभी आपके एग्जाम में ऐसे आरओसी आ जाए कि इसको शो ही ना करे वो, ठीक है, इसको शो ही ना करे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जीरो नहीं दिखा रहा है, जीरो नहीं दिखा रहा है, जीरो मतलब जब इसका मतलब कुछ है ही नहीं तो फिर इसको आरओसी में क्यों शो करेगा, ठीक है। इफ इन योर एग्जाम वन ऑप्शन इज लाइक दिस वेयर जीरो इज नॉट शोइंग इन क्या होता है ऑप्शन, देन यू नीड टू एलिमिनेट दिस वन, ओके, यू नीड टू करेक्ट दिस वन। हाँ, बस पोल से देखना है, वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे, और अगर यहाँ पे लगा भी दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पॉसिबल इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आरओसीज। समझ आया? number of possible inverse Laplace transform is equal to number of possible ROCs. Any problem? इसका number of inverse Laplace transform कितना हो जाएगा? 5. Write down one question. इसको मिटा दें, x of t whose Laplace transform is x of s, whose Laplace transform is x of s, whose Laplace transform is x of s. Pole is given. Pole is given. Pole क्या दिया हुआ है? Write down. पोल दिया हुआ है -3 -2 +-j and 1 and zeros दिया हुआ है -5, 6. Find out number of possible ROCs. Find out number of possible ROCs. ड्रॉ कीजिए, कुशाद ड्रॉ कीजिए, वेवफॉर्म ड्रॉ कीजिए, वेवफॉर्म नहीं मतलब वो आरओसी का रीजन ड्रॉ कीजिए, और रीजन आरओसी बताइए कितने होंगे और आरओसी का रेंज बताइए। हाँ बट रेंज बताइए आरओसी का। ये हो गया,
टेल मी यू रेंज टेल मी लेमडा या सिग्मा सिग्मा हाँ -2 से 1 तक, -1 नहीं, हाँ 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 -3 से -2 एंड सिग्मा लेस देन -3. ओके डन. यू समझ आया मुनि? राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी. टाइम रिवर्सल. टाइम रिवर्सल देखें, देखिए x ऑफ t जिसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म x ऑफ s. ओके देन x of minus t will become x of minus s. ROC क्या हो जाएगा? इसका ROC क्या हो जाएगा? अगर इसका ROC सिग्मा है देन रिप्लेस सिग्मा विथ माइनस साइन ऑफ सिग्मा. राइट डाउन. रिप्लेस sigma with minus sigma in ROC x of t. Replace sigma with minus sigma in ROC of x of t. मैं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं. एक एग्जांपल क्या? हाँ, जैसे कोई सिग्मा ग्रेटर देन -2 आया तो बस माइनस सिग्मा ले लो. ठीक है, देख रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं. ओके, एक एग्जांपल देखें. रेड डाउन क्वेश्चन. क्वेश्चन में एग्जांपल देख लीजिए. रेड डाउन क्वेश्चन. y of t is equal to minus e minus t u of minus t. ओके, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म y ऑफ s होगा. एनी प्रॉब्लम? इसका ROC कुछ होगा. ठीक है, ठीक है. क्या देखना है? y ऑफ t एक सिग्नल है जिसका हमें y ऑफ s निकालना है और ROC निकालना है. ओके, देखें, देखिए, देखिए, बताइए e टू द पावर क्या हो? e टू द पावर माइनस AT ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्म बताइए. 1 बाय ROC बता दीजिए. ROC बता दीजिए. सिग्मा ग्रेटर देन माइनस. प्रॉब्लम यू? एनी प्रॉब्लम? इसका पता चल गया, इसका चाहिए. वहां क्या है? सिर्फ माइनस एक बाहर है, यहां पे माइनस मल्टीप्लाई. एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, t को माइनस टी से रिप्लेस करिए. ठीक है, t को माइनस टी से
रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी। एनी प्रॉब्लम? जब t को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो s को किससे रिप्लेस करेंगे? और सिग्मा को? एनीवन प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, अगर माइनस माइनस तो सिग्मा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सिग्नल क्या है, ये सिग्नल सेम है क्या, रिप्लेस ए बाय माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट डाउन। कुछ गलत हुआ है, रुकिए, ये लिखे, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं। कर रहा हूं मैं, आप लिखिए ना, मैं जो लिखा हूं उसको। डन। इसका आर उसी कैसे आ जाएगा, अब बताइए मुनीम, कोई प्रॉब्लम? यू, एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए था, सिग्मा को रिप्लेस किया माइनस सिग्मा से, माइनस सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, और फिर ए को माइनस ए से जब रिप्लेस किया तो माइनस सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन एज अ नोट। एकदम इसको एकदम मुंह पे रखिएगा, ठीक है, ऐसे रिमेंबर की मतलब पूछू तो हमेशा याद रहे। क्या
अब यार इलेक्ट्रिकल से हो तो मतलब समझ ही रहे हो कितना सारा सब्जेक्ट है, कितने सारे सिलेबस है। इसीलिए तो मैं संडे को बोला था कि संडे को एक दिन ऐसा रखिए जहाँ पे रिवाइज करें हम लोग। देखिए पहला पहला लिखिए e टू द पावर माइनस एटी u ऑफ t, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ROC सेकंड लिखिए इसका ROC डन। माइनस ए है, ये दूसरा वाला सेकंड माइनस ए तक ही रुकेगा ना, माइनस ए तक ही रुकेगा ना, माइनस ए से जाएगा, माइनस ए टू इंफिनिटी तक जाएगा। सिंपल है सर, माइनस ए है। हाँ ये माइनस है, इधर इसका ROC समझ आया। राइट डाउन थर्ड कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी मिटा दे। कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए x ऑफ t कुछ लैप्लस ट्रांसफॉर्म x of s, when x conjugate of t, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x conjugate s conjugate, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x conjugate s s conjugate, both are same। समझ आया तुषार, क्या किए यहाँ पे एस कॉन्जुगेट के जगह पे सिर्फ s, वहां भी प्लस के बदले ऐसा है, ठीक है। ROC इसका क्या होगा, ठीक हो जाएगा, प्लस से माइनस, का है प्लस से माइनस। ROC लिखिए नो चेंज इन ROC, जब कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी होता है तो वहां पे नो चेंज इन ROC, जो इसका ROC वही इसका राइट डाउन। समझ आया, नो चेंज इन ROC, याद रखिएगा ये सर। राइट डाउन वन एग्जांपल, x of t हो गया ना, x of t whose Laplace transform is x of s, x of t whose Laplace transform is x of s, 1 by s plus 2 plus j3, okay, 1 by s plus 2 plus
जिसका आरओसी मान लीजिए दिया हुआ है सिग्मा ग्रेटर देन -2। क्या दिया है? सिग्मा ग्रेटर देन -2, देन फाइंड आउट द एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। बताइए द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। 1 अपॉन गुड सिग्मा वही रहेगा। ठीक है, ठीक है। और एस के जगह पे एस कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो एस ही हो जाएगा। समझ आया? राइट डाउन फोर्थ वन, टाइम शिफ्टिंग। हर जगह टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग किसी ने छोड़ रहा है, छोड़ेगा ही कैसे? सिग्नल देखिए क्या टाइम शिफ्टिंग ये तो हमें नहीं पता। एक्स ऑफ टी बिना सिग्नल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे कैसे? पूरा वोल्टेज का वेव फॉर्म, करंट का वेव फॉर्म, सारा तो सिग्नल ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऑफ टी whose Laplace transform is x of s, x of s, then x of t plus minus t naught will become x of s e की पावर प्लस माइनस s t naught। वही सेम होगा। अगर इसका लेप्लस, इसका आरओसी जो होगा वही इसका आरओसी होगा, मतलब आरओसी नो चेंज इन आरओसी। राइट डाउन नो चेंज इन आरओसी। ठीक है, राइट डाउन वन एग्जांपल। x of t whose Laplace transform is x of s, x of t whose Laplace transform is x of s, and ROC should be sigma greater than -1. Find Laplace transform, find Laplace transform x of t minus 3, t minus 3। क्या हो जाएगा? जियो में क्या लिखना था? डन। क्या आया? 1 बाय एस प्लस 1 e टू द पावर माइनस 3s। 3 क्यों आएगा? s प्लस 1 है ना, 1 अपॉन s प्लस 1 e टू द पावर माइनस 3s। हाँ डन डन। राइट डाउन फिफ्थ वन, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी।
टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। सारा प्रॉपर्टी कनेक्ट हो पा रहा है? जिसने याद किया होगा प्रॉपर्टी उसका कनेक्ट हो रहा होगा। याद किए प्रॉपर्टी? एक्स ऑफ टी इज एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ टी इज एक्स ऑफ एस। इसका आरओसी सिग्मा दिया हुआ है। एनी प्रॉब्लम? एक्स ऑफ टी whose Laplace transform is x of s, जिसका आरओसी सिग्मा दिया हुआ है। ओके, देन x of at will become 1 upon mod a x s by a। और यहां पे आरओसी क्या हो जाएगा? राइट डाउन आरओसी, इसका आरओसी रिप्लेस सिग्मा जो पहले है, पहला आरओसी क्या है? रिप्लेस सिग्मा विथ सिग्मा बाय ए। समझ आया? अगर पहले का आरओसी सिग्मा है तो अब आरओसी क्या हो जाएगा? ओके, राइट डाउन वन एग्जांपल। क्या हुआ? e की पावर -3s बताना पड़ेगा। नहीं समझ आया। मैं यहाँ बता दूँ प्रॉपर्टी। आप लोगों ने समझ आया? हाँ, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बता दीजिए आप लोग रिप्लाई करके। हाँ हो गया। यहां पे क्या लिखा है आरओसी? रिप्लेस सिग्मा विथ सिग्मा बाय ए। राइट डाउन वन एग्जांपल। यहां पे नहीं दिखाता है, खुला तो है। ठीक है कोई नहीं। राइट डाउन एक्स ऑफ टी इज एक्स ऑफ एस। हाँ क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल मतलब क्वेश्चन है। इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस 1 अपॉन एस प्लस 3 एंड सिग्मा greater than equal to -3। okay, tell me the Laplace transform of x of 5t। and ROC of this one। क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज लगाइए सचिन। क्या हो गया? पूरे तोड़ के बोलिए ना इसके टर्म में।
ऐसा आएगा, देखिए 1/s+15 सिग्मा ग्रेटर देन -15। समझ आया? डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। ये आंसर आएगा, बाकी डिवाइड मल्टीप्लीकेशन देखिए आप, मैं सॉल्व अगर बोलिएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ सर, आ गया। नहीं आया? आपका आया? इसका क्या होगा सचिन, बताइए आप। 1/x ऑफ s बाय होगा, सिग्मा क्या बोला था, सिग्मा में 5 से रिप्लेस होगा, देन सिग्मा ग्रेटर देन -15। फाइव टी, एक्स ऑफ टी दिया हुआ था, तो एक्स ऑफ 5t निकालना था। आपने पीछे लिखा है कि सिग्मा डिवाइड बाय 8 होगा। रिप्लेस सिग्मा विथ सिग्मा बाय ए, मैं ऐसा लिखवाया हूं, रिप्लेस सिग्मा विथ सिग्मा बाय ए, नॉट डिवाइड बाय ए। आप -3/5 कर दिए क्या? नीड टू डिस्कस? Write down sixth one. Convolution in time. Convolution in time. Convolution in time. x1 of t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म x1 of s, x2 of t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म x2 of s, ठीक है। Then x1 of t convolve with x2 of 2t will become x1 of s into x2 of s। अब ROC क्या हो जाएगा इसका? ROC, हाँ एकदम सही, एटलीस्ट ROC x1t इंटरसेक्शन ROC x2 of t। समझ आया? राइट डाउन वन एग्जाम्पल। y of t is equal to e to the power -2t u of t कॉन्वोल्यूशन, अरे यार कॉन्वोल्यूशन का साइन ऐसे, कॉन्वोल्यूशन e to the power -4t ut। फाइंड y of s and ROC। कितना है? हाँ ROC, हाँ और y of s, ठीक है। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। ये दोनों का कॉमन -2, यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन, तो सिग्मा ग्रेटर देन -2, सिग्मा ग्रेटर देन -4, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? सिग्मा ग्रेटर देन -2, 2 क्यों? -2। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन।
डन. यू y of t is equal to e to the power minus 2t u of t, sorry u of minus t. लिख दूं क्या मैं? y of t is equal to e to the power minus 2t u of minus t convolution e to the power 3t u of t, 3t u of t. Find y of s and ROC. No common ROC will present here, so Laplace transform will not exist. Simple. क्या आ रहा है पहले बताइए. ROC बताइए. सिग्मा सिग्मा ग्रेटर देन 3, सिग्मा लेस देन -2, सिग्मा ग्रेटर देन -3, सिग्मा लेस देन -2. कोई कॉमन आरओसी बन रहा है क्या दोनों के बीच में? -2 से छोटा मतलब इधर और 3 से बड़ा कोई कॉमन आरओसी बन रहा है क्या? जब आरओसी पॉसिबल नहीं है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म नॉट पॉसिबल. ओके, अच्छा क्वेश्चन था. सबसे पहले होता नहीं, सबसे पहले होता. राइट डाउन 7th वन. हाँ, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. वो डुअलिटी था. देखिए x of t whose Laplace transform is x of s. Okay. Then t into x of t will become t n to the power x of t will -1 to the power n d n x of s upon ds to the power n. डन. इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन 2016 में शायद 16 या 14 में. धीरे धीरे मॉडरेट होता जा रहा है पेपर. अभी हमें सेलेक्टेड क्वेश्चन करने का नौबत आ चुका है. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाऊं तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है. सेलेक्टेड क्वेश्चन जो करके निकल रहा है ना, उनका रैंक हो जा रहा है. where n is equal to positive integer और आरओसी में लिखिए नो चेंज इन आरओसी. नो चेंज इन आरओसी मतलब इसका जो आरओसी रहेगा वही इसका आरओसी रहेगा. ठीक है. ट्वेंटी वन के भी सही थे यार. 21 के भी सही थे. नहीं, 21 के पेपर बहुत सही थे. हाँ, ये यार ये वाट लगा दिया.
इसके बाद तो रेसिप्रोकेट पूरा हो गया ना। x of t, x of t, write down question, sorry, y question, write down question, y of t, y of t is equal to t into x of t, y of t is equal to t into x of t. इसका हमें y of s बताइए और ROC बताइए. where x of t is equal to e to the power minus at ut minus at ut. बताइए. कितना है? x ऑफ t दिया हुआ है, ये हुआ है ना आपने t की पावर माइनस 80 e का पावर माइनस 80 ut. इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म सिग्मा ग्रेटर देन माइनस है. x ऑफ s आ गया, y ऑफ s बता दीजिए. y ऑफ s क्या हो जाएगा सचिन बताइए. -1 का पावर 1 d ds. x ऑफ s कितना है? कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, कैसे सॉल्व करें? डिफरेंशिएशन भूल रहे हैं क्या? क्या आएगा? यस, वेरी गुड. अब तुम डिफरेंशिएशन करो. मैं तो तुम्हें बताया हूं, u बाई v का डिफरेंशिएशन मैं बताया हूं. अगर वैसे भी नहीं करोगे तो s प्लस ए का ऊपर, s प्लस ए को ऊपर ले जाओ, फिर करो. डन. तो राइट डाउन t e टू द पावर माइनस at u ऑफ t, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस. बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है? माइनस 80 की पावर करनी होती है -1 पे आपने वहां पे 1 डाला हुआ है. हाँ, ए पावर की पुट करनी होती है. ए पावर x वाला पे दी हुई है. t की पावर -80 हमारे पास दिया हुआ है, वही हमारा n नहीं है. n है. n क्या है? t की पावर है जो कि t की पावर ये कांस्टेंट की पावर. ठीक है. क्या हुआ? एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट का.